Hello students, in this video I am going to tell you about digestion in another kind of organism. Okay, it's a microscopic organism. Microscopic. Micro means small, which cannot be seen from naked eyes. You need to look into a microscope. As I told you in the when we started with the first chapter, I told you about something what we call as microorganisms. If you remember, microorganisms, right? There is just one O. Okay, microorganisms. There is just one O. There are not two O's. Okay, so microscopic organisms or microorganisms means there are certain organisms or living beings. Basically, they are also living organisms. Any living being on earth is called an organism, right? Whether it's microscopic or macroscopic. We are macroscopic means we are large, right? We can see each other through naked eyes. But for microscopic living beings or organisms, or anything for that matter which is so small, which cannot be seen through naked eye, okay, we need a microscope. Okay, as I told you in one of the videos also, it's a device something like this. There is a lens. Okay, you see from here, this is the eye, your eye, where you see from. Okay, this is your eye, you see from here. Just you don't need to, I'm just drawing this to explain you how does it look like. I also drew it in the while I was explaining about the first chapter. Okay, so it looks something like this. There are like two, this is a stage. Okay, there are two stages like this. We place there are something what we call as glass slides. Okay, they look like this. They are like plastic plates, thin plastic strips. छोटी छोटी प्लास्टिक की ऐसे ना वो होती हैं, नॉट प्लास्टिक, ग्लास की ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं. ओके, दे आर कॉल्ड ग्लास स्लाइड्स. ओके, एंड व्हाट वी डू इज we place the microorganism whatever we want to see under the microscope on the glass slide, and we place this whole glass slide on this is the stage जिसके ऊपर रखते हैं. ठीक है, एंड यू सी इट फ्रॉम हियर. दिस इज़, ये एक तरह की लेंस है. मतलब जैसे आप आगे पढ़ोगे, जैसे कोई चीज़ को बड़ा करके दिखाना, ये उसको बड़ा करके दिखाती है. देन यू कैन सी इट, हाउ डज इट लुक लाइक. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, टू मैग्नीफाई या फिर एनलार्ज, लार्ज करके दिखाना या एनलार्ज. ठीक है, magnify or enlarge an object, a microscopic object, so that you can actually see उसका structure देख सको कैसा है कैसा नहीं है. ठीक है, okay, so that was about microscopic organisms. अभी हम जो डिस्कस करेंगे, it is about a microscopic organism, digestion in a microscopic organism called as amoeba. Amoeba, AMOEBA, it's B. Okay, amoeba. So amoeba is a kind of microscopic organism. It's heterotrophic. Okay, it is not autotrophic like alga. Alga, on the other hand, many people get confused between algae and amoeba. Alga is totally different. It is autotrophic because it contains what? Chloroplast, containing the chlorophyll, right? Chloroplast is, we can say it's a part in the cell containing the green pigment of the chlorophyll. CHL means chlorophyll. Chlorophyll, just remember chlorophyll. Okay, so alga is autotrophic, okay, just like plants, and amoeba is heterotrophic. So please don't get confused between these two. Okay, coming to amoeba, now what happens is, first of all, it's described like on a microscopic level, it has been observed that it does not have a definite shape. First of all, उसकी एक फिक्स्ड शेप नहीं होती है. ठीक है, वो ना मतलब बड़े अजीब तरीके से चलने का उसका तरीका होता है. ठीक है, आई सेंड यू अ वीडियो ऑल्सो वेरी यू कैन सी हाउ डज इट मूव. उसका एक इरेगुलर सा ऐसा कुछ होगा. ठीक है, स्ट्रक्चर होगा, और वो चलने टाइम ऐसे अपने, ये उसके समझ लो पाँव है. ठीक है, यू जस्ट थिंक दैट दीज आर द फीट ऑफ अमीबा. सो अभी जैसे ये आगे है, और जब ये यहाँ आएगा
तो ये ऐसे बन जाएगा, कुछ इसकी अलग शेप बन जाएगी। मतलब ये अपने आप को ना जैसे इट्स लाइक फ्लूइड टाइप जैसे कुछ होता है, मतलब अपने स्प्रेड करके चलना, ठीक है। एक मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं है, डज नॉट हैव अ डेफिनेट और अ फिक्स्ड शेप। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड, डेफिनेट और फिक्स्ड शेप, ठीक है। इसकी एक इरेगुलर सी शेप होती है, इरेगुलर, ठीक है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट एज इट मूव्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। अभी कुछ थी, उसके बाद आगे जाएगा तो कुछ और होएगी इस तरह। आई सेंड यू अ वीडियो ऑल्सो, इट्स अ वेरी नाइस वीडियो जिसमें दिखाया है कि कैसे चलता है एमीबा। ओके, अच्छा, जो मैंने ये बनाया था, ठीक है, ये जैसे आपको दिख रहा है दिस काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स कॉल्ड सूडोपोडिया, सूडोपोडिया या सूडोपोडियम। एक होता है, से सिंगुलर है सूडोपोडियम, ये सारी को मिलाकर जो प्लूरल है दैट इज सूडो। इसको ना पी साइलेंट है इसमें, ओके, पी इज साइलेंट, सो यू विल थिंक दैट पी इज नॉट देयर बट यू हैव टू राइट पी, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया इज प्लूरल and pseudopodium is singular, okay. So what happens as the amoeba moves forward, okay, it will take out the pseudopodia, अलग अलग जगह से अपना निकालेगा, okay, pseudopodia निकालेगा। So when it moves forward, okay, it takes out, इसके समझ लो ये पाँव हैं, these are the feet. So when you are asked what is pseudopodium, it's actually the feet of amoeba, it's actually the foot of amoeba, ओके। वो अपना एक जगह से निकालेगा उसको, जैसे आपने अगर देखा हो, फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने कभी एक स्पंज देखा हो, जो स्पंजेस होते हैं ना, जैसे बेड पे लगा होगा या कहीं कुशन में लगा होगा, ठीक है, स्पंज होता है एक इस तरह का, ठीक है, उसमें से छेद बहुत सारे बने होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर आपने उसको दबाने की कोशिश करते हो तो वापस से दोबारा उछल के आ जाता है ऊपर, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। और क्या होता है, जब आप मान लो अगर आप उसको अपनी मुट्ठी के अंदर उसको आप पकड़ने की कोशिश करो तो यू सी कि जगह जगह से उसके निकले हुए हैं, मतलब इफ़ यू ट्राई टू जस्ट क्लेंच इट इन योर फिस्ट, लाइक उसको आप ऐसे पूरा मतलब है ना पकड़ने की कोशिश करो हर जगह से, यू सी कि वो जगह जगह से ना, मतलब आपके जैसे ये अगर हैंड है आपका, ठीक है, ये अगर हैंड आपने से पकड़ा हुआ है तो जगह जगह से निकलने की कोशिश करेगा, ओके, बिकॉज इट कैन नॉट स्टे, वो एक बॉल नहीं बन सकता, वो एक ऐसा ही स्पंज टाइप रहेगा, स्पॉन्ज टाइप, ठीक है। तो इट ऑल्सो उसमें वो मतलब इतना वो है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कि वो एक जगह से निकलता है दूसरी जगह से बाहर आ जाता है। मतलब ये है सिंपल सा कि सूडोपोडिया इज़ लाइक, मतलब उसमें ये होता है कि एक जगह से अगर बाहर निकलेगी दूसरी जगह से अंदर हो जाएगी। सो इट्स लाइक बहुत ही जैसे होता है ना फ्लूइड टाइप, फ्लूइड मतलब जैसे लिक्विड का मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे फ्लूइड मूवमेंट होता है कोई चीज़ का, ठीक है, ऐसे मैं आपको भेजूँगी तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो उसका फीट है एक जगह से यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से देखो अंदर हो गया, इसी तरह अगर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ से अंदर हो जाएगा, मतलब ये अंदर हो गया, ठीक है, इधर से ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट सूडोपोडिया इज़ लाइक एंड दिस इज़ हाउ अमीबा मूव्स। अब अमीबा के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ अलग अलग डॉट्स में, ठीक है, और समथिंग लाइक दिस, ओके। अब जो ये सबसे पहले ये जानो, ऑरेंज डॉट को न्यूक्लियस तो भाई हर सेल में होता है, ये वी नो दैट, राइट। अब ये जो डॉट्स हैं, एक को वैक्यूल ले लो, वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है, ये सबसे पहले इसको हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। फूड वैक्यूल इज़ नथिंग बट अ स्टोरेज, जिसमें ना सारा फूड स्टोर होता है। आप ये मान लो अमीबा का स्टमक है ये, ठीक है, इट इज़ द स्टमक ऑफ अमीबा, फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल। व्हाट इज़ फूड वैक्यूल, आप इसको समझ लो ऐसे आपके समझने के लिए, डोंट हैव टू राइट दिस, जस्ट अंडरस्टैंड इट एज इट्स कॉल्ड द स्टमक ऑफ अमीबा, ठीक है, स्टमक ऑफ अमीबा, इन दिस केस अमीबा, क्योंकि देखो वैक्यूल जो है वो आपके प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी, हर एक सेल में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीबा में होता है, बट इन केस ऑफ अमीबा इट एक्ट्स एज अ स्टमक, ठीक है। वाई आर वी कॉलिंग इट द स्टमक ऑफ अमीबा, बिकॉज फर्स्टली क्या होता है कि जैसे जो फूड पार्टिकल होता है, सबसे पहले जैसे ये मैंने एक ये अमीबा बनाया है, ठीक है, तो फूड पार्टिकल मान लो यहाँ आ गया,
दिस इज सपोज द फूड पार्टिकल राइट हेयर। तो क्या होगा, जो एमीबा होगा वो क्या करेगा, उसके चारों तरफ एक ऐसे लेयर सा बना लेगा, ऐसे सूडोपोडिया उसके चारों तरफ बना लेगा, और सूडोपोडिया उसको ना अंदर ले लेगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा बना के दिखा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द फूड पार्टिकल, ठीक है। एंड तो एमीबा क्या करेगा, पूरी तरह से उसको घेर लेगा, ठीक है। कैसे घेरेगा, समथिंग लाइक दिस। इसकी सूडोपोडिया ये हो गई, ये है सूडोपोडिया। ये इसकी तरफ ना ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बना लेगा, और धीरे धीरे ये और आगे आती जाएगी, ये और आगे आती जाएगी। ऐसे करते 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 ये ऐसे फिर अंदर आ जाएगा, दिस विल कम इनसाइड, ये ऐसे आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये इसके अंदर आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे मिल गई थी ये, ठीक है, यहाँ पे मिल गई थी ये, अब दोबारा से आपस में जुड़ जाएगी, जैसे ये मिल रही थी, ठीक है। ये जो मिल गई थी ये दोबारा से आपस में जुड़ के ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। दिस विल कम लाइक दिस, ठीक है। एंड अब क्या होगा, ये अंदर आ गया एंड ये क्लोज हो गई है, सो मैं इसको अंदर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। दिस हैज़ कम इनसाइड राइट हियर, ठीक है। और ये जो सूडोपोडिया है चारों तरफ से घिर गई है, बंद हो गई है। सो नाउ इट हैज़ एंटर्ड इनटू द एमीबा सेल। ये एक ही सेल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये एमीबा इज़ अ सिंगल सेल है। ये नहीं कि एमीबा इज़ मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। हमारे अंदर हम लोग क्या है, हमारे अंदर हमारे अंदर इतने सारे सेल्स हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक टिश्यू, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन का अलग अलग टाइप का सेल होता है। तो देर आर लाइक इनकाउंटेबल सेल्स इन आवर बॉडी। बट इन केस ऑफ एमीबा इतना छोटा है कि हमारे एक सेल के बराबर है, एक सेल, जस्ट वन सेल, ओके। सो इट इज़ मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल। तो सोचो कितना छोटा होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसके अंदर आ गई है, ये जो है ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। मैं FP लिख रही हूँ, दैट्स अ फूड पार्टिकल, ओके। अब क्या होता है, अब अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, as soon as the food particle enters into the amoeba, ठीक है। तो क्या होता है, मैं एक इस तरह ड्रॉ कर देती हूँ इसको। सपोज इट्स राइट हियर, दिस इज़ द फूड पार्टिकल, ठीक है। एंड वैक्यूल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। फूड वैक्यूल लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ये वैक्यूल हो गया, ठीक है। अब वैक्यूल और फूड पार्टिकल आपस में आते हुए दिख रहे हैं आपको, राइट। अब क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ। इट इज़ जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये सपोज है वैक्यूल और ये है फूड पार्टिकल। सॉरी, फूड पार्टिकल विल बी मच स्मॉलर देन द वैक्यूल विल बी मच लार्जर, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ द वैक्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो आ गया है फूड पार्टिकल, दिस, ठीक है। अब क्या होगा, ये फूड पार्टिकल है ब्लू वाला, एंड पर्पल वाला जो है दैट्स द वैक्यूल। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो है वैक्यूल इट एक्ट्स एज अ स्टमक। वाई, बिकॉज सबसे पहले तो इसके अंदर जाता है। जब चला जाता है, हम लोग जब खाते हैं तो हमारे मतलब अंदर जब हम ले लेते हैं तो जाता कहाँ पे, स्टमक में। तो दिस फूड वैक्यूल एक्ट्स एज अ स्टमक बिकॉज इट स्टोर्स द फूड पार्टिकल विच हैज़ बीन टेकन इनसाइड बाय एमीबा, या फिर एनगल्फ्ड। इसमें एक वर्ड याद करो, एनगल्फ्ड, मतलब अंदर ले लेना उसको, ठीक है। इस चीज़ को अंदर ले लेना, एनगल्फ्ड बाय एमीबा, और ठीक है, एनगल्फ्ड बाय एमीबा। तो ये इसको स्टोर करता है, और जब इसको ज़रूरत होती है फूड पार्टिकल से एनर्जी निकालने की, इसको तब तक स्टोर करके रखता है जब तक इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी किस लिए, टू कैरी आउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ द सेल, ठीक है ना।
उसके लिए एनर्जी चाहिए। कोई भी मूवमेंट हो रही है, अगर अमीबा को चलना है उसके लिए एनर्जी चाहिए, या कुछ भी ऐसा रिप्रोडक्शन होनी, जैसे मल्टीप्लाई करना है, और अमीबा के सेल्स और मल्टीप्लाई करके बनेंगे, ठीक है, उसके लिए भी 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, मूवमेंट के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो सब एनर्जी कहाँ से आएगी? इसी फूड पार्टिकल से। लेकिन ये तभी यूज़ होगा जब ज़रूरत होगी। तो जब ज़रूरत होती है तब क्या होता है कि फूड वैक्यूल जो है, इट सेक्रीट्स सर्टेन, हम कह सकते हैं, मतलब इसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्ट एंजाइम्स, ठीक है। जैसे हम आपको बताया था ह्यूमंस के केस में, देयर आर सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर सेक्रीटेड या विच आर रिलीज्ड, ठीक है। सेक्रीटेड मतलब निकालना, बना के निकालना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते भी फूड वैक्यूल के अंदर ही है, ठीक है। वो बन के फिर निकलते उसके अंदर हैं, जो फूड पार्टिकल जो है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो फूड पार्टिकल है, इट गेट्स ब्रोकन डाउन, ठीक है, इट गेट्स ब्रोकन डाउन। आपको ऐसे दिखा दिए, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीटेड और रिलीज्ड बाय द फूड वैक्यूल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली नेक्स्ट एक बार डाइजेशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? एब्जॉर्प्शन, राइट। तो इसमें भी वही सब सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है, फिर उसके बाद स्टमक में जा रहा है, वो तब तक वहाँ पे स्टोर होगा जब तक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ेगी जैसे रिप्रोड्यूस करने के लिए या मूवमेंट के लिए, तो उस टाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होंगे फूड वैक्यूल के अंदर, विच विल ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल विच हैज़ बीन टेकन इनसाइड और एनगल्फ्ड बाय बैक्टीरिया। एनगल्फ कैसे होता है? थ्रू सूडोपोडिया। वो हाउ डज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डज एमीबा एनगल्फ द फूड पार्टिकल और टेक इन द फूड पार्टिकल, तो इट इज़ थ्रू की सूडोपोडिया फॉर्म्स, इट सराउंड्स, ठीक है, इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल इन सच अ वे, ठीक है, जैसे आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाया था, चारों तरफ उसको घेर लेती है फूड पार्टिकल को, ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ इट एनगल्स, वो फिर उसके अंदर चला जाता है, लाइक दिस, चारों तरफ से घेर लिया सूडोपोडिया ने, ठीक है। इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल एंड टेक्स इट इनसाइड, ठीक है। और ये जो बेसिकली ये जो तरीका है, दिस काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशन हैज़ अ नेम एंड दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट डज़ द वर्ड होलोजोइक मीन? होलो मतलब होल फूड पार्टिकल। हम लोग उसको चू करके अंदर लेते हैं, बट अमीबा उसको अंदर लेकर फिर अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है। हम उसको चू नहीं कर रहा है, वो उसको एज इट इज़ पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल है एज इट इज़ अंदर ले रहा है विदाउट चूइंग। ये समझ लो कि जो बाइट है, अगर हम उसको ऐसे ही अंदर ले लें विदाउट चूइंग, तो इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होल मतलब पूरा का पूरा वो ऐसे ही अंदर ले रहा है विदाउट ब्रेकिंग डाउन, बिकॉज चूइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन जिसमें ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सबसे पहले उसको हम छोटे छोटे जो बाइट हम लेंगे उसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, फिर अंदर जाके और टूटेगा, फिर और टूटेगा, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप टूटता जाता है और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज़ होते जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे केस में क्या है कि हम जो हमारे टीथ हैं वो च्यू करते हैं, और सलाइवा जो है, ठीक है, वो मिल के पार्शियल डाइजेशन तो माउथ में ही हो जाती है, फिर आपको 30-40% जो मैंने बताया था वो माउथ में हो जाती है। उसके बाद बाकी की जो डाइजेशन है वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। उसी तरह लेकिन जो एमीबा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसका वो पूरा का पूरा एज इट इज़ अंदर ले लेता है, और डाइजेशन होती है बाद में, जब ज़रूरत होती है एमीबा को एनर्जी की, तब जाके डाइजेशन शुरू होती है फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। तो that is why this kind of a nutrition is called holozoic nutrition. It is also a kind of heterotrophic, as I told you, it is dependent upon other foods, कि अपना खुद का ये फूड नहीं बना सकते हैं, तो it is also a kind of heterotrophic nutrition, just like parasitic and saprotrophic nutrition, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, right? So I hope this is clear and this is where we end our chapter. अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है, that's all.